Hello everyone. Welcome to New Era Pathshala Education. Myself Nishtha and I'll be teaching chemistry on this platform. Please subscribe this channel for more educational videos. You can also send any query related to the topic in the comment box. Please do like, share, and forward it to your friends. So today we are going to discuss about the back exercise that is present in your NCERT books. In the last lecture we have completed the chapter chemical reactions and equations, that is chapter number 1. So we have also done all the in-text questions, that are blue questions given in your book turn by turn, but the last back exercises left. Now we will discuss the back exercise question answers today so that you can practice and what type of questions are coming in your papers you can easily attempt. So the first question is, which of the following statements about the reaction below are correct? This is the reaction in which lead oxide plus carbon forms lead and carbon dioxide. So first option is lead is getting reduced. You can see lead की रिडक्शन हो रही है. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो लेड से रिमूव हो रहा है. सेकेंड, carbon dioxide is getting oxidized. Carbon dioxide, that is wrong, because carbon is getting oxidized, not carbon dioxide. Now third option is carbon is getting oxidized, so means C is correct and A is also correct. And the last option is lead oxide is getting reduced. Lead oxide is getting reduced. Lead is getting reduced or lead oxide? Lead oxide. So the option is A and C. A and C options are correct in this. Now the next question is, Fe2O3, that is iron oxide, combines with 2Al to form Al2O3 and 2 iron. This is the reaction. Now we have to tell the above reaction is an example of what type of reaction. Is this a combination reaction, double displacement reaction, decomposition, or displacement? Here you can easily see in the product aluminium is displacing iron from its position, so means it is a type of displacement reaction, because aluminium is more reactive than iron, so it can easily replace iron from its position. So this type of reaction is called displacement reaction. So our fourth option is correct. Now question number third, what happens when a dilute hydrochloric acid is added to iron fillings? आयरन फिलिंग्स मीन्स आयरन के छोटे छोटे पीसेस, उसमें अगर हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं तो क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन इज हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड. सेकेंड इज chlorine gas and iron hydroxide are produced. Third is no reaction, and fourth is iron salt and water are produced. So what is the reaction? Iron fillings means iron is reacting with dilute hydrochloric acid, that is HCl. So iron, in the reactivity series you can see that iron is more reactive than hydrogen, so it can easily displace hydrogen from HCl. So the product will be FeCl2. Why?
because iron is having valency 2 and chloride is having valency 1. So cross multiplying you will get formula is FeCl2 plus hydrogen will be evolved in the form of gas. So our first option is correct, in which hydrogen gas is evolved and iron chloride are produced. So option 1 is correct. So these three, question number first, second and third, these three were the MCQ based questions which can come in your exams. Now we will start with the subjective type of questions. Lengthy questions, 2 marks, 3 marks, 4 marks questions which comes in your exams. So the question number 4 is, what is a balanced chemical equation? Balanced chemical equation क्या होती है? That equation in which the number of atoms of reactant are equal to the number of atoms of product. And the second part of the question is, why should a chemical equation be balanced? Chemical equation को क्यों बैलेंस किया जाता है? To follow the law of conservation of mass. So this question we have already done in our notes. I'll show you. So in the notes during the chapter we have discussed this question, why do we need to balance a chemical equation? That is, to follow the law of conservation of mass we need to balance any chemical equation. Law of conservation of mass क्या कहता है? The mass of the reactant must always be equal to the mass of products. जब भी कोई रिएक्शन होती है तो इन दोनों के रिएक्टेंट्स के मास और प्रोडक्ट के मास हमेशा इक्वल होने चाहिए. और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed during any chemical reaction. जब भी कोई chemical reaction होगी ना तो मास क्रिएट होगा नया, ना ही मास डिस्ट्रॉय होएगा. जो जितना मास हम रिएक्टेंट में लेंगे उतना ही मास प्रोडक्ट में आएगा. बट होगा क्या, उन एलिमेंट्स की, उन एटम्स की रीअरेंजमेंट होके न्यू प्रोडक्ट्स बनेंगे, न्यू कंपाउंड्स फॉर्मेशन होएगी. सो मीन्स दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ mass. So that is why we need to balance a chemical equation to follow the law of conservation of mass. The first part of the question was define. What do you mean by a balanced chemical equation? It is the equation where number of atoms of reactant are equal to the number of atoms of products. In this example you can see 2 Mg plus O2 forms 2 MgO. All the number of atoms, magnesium 2, 2, oxygen 2, and here also oxygen 2. So this is the example of a balanced chemical equation. So we have done this already. I have repeated it once. Question number 5 is, translate the following statements into chemical equations. अब स्टेटमेंट की फॉर्म में हमें दिए हुए हैं, हमें उनको केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है एंड बैलेंस दैम. पहले तो इक्वेशन बनाएंगे फिर इक्वेशन को बैलेंस करेंगे. सो कैसे बनाएंगे इक्वेशन? सी, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन. फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन का आपको फॉर्मूला आना चाहिए. हाइड्रोजन गैस H2, नाइट्रोजन गैस N2. सो दिस इज़ द फॉर्मूला. Hydrogen gas plus nitrogen gas form ammonia. Ammonia is NH3. So first of all you have to convert the word equation into symbol equation. Then balance it. How can you balance it? Here see 2 nitrogen atoms needed in reactant and here only 1. So means this we have to multiply it by 2. And hydrogen, by multiplying it with 2, hydrogen becomes 2 3s are 6. So here also we need 6 hydrogens. So we have put 3. So 2 को और 3 को इक्वेट करने का मैंने आपको मेथड बताया था. 2 वाले को 3 से मल्टीप्लाई, 3 वाले को
टू से मल्टीप्लाई, जैसे हम मैथ्स के एलिमिनेशन मेथड में करते हैं. नाउ नेक्स्ट, सेकेंड इज हाइड्रोजन सल्फाइड गैस. हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फाइड मीन्स S, सिंगल S. सो H2S, हाइड्रोजन और सल्फर. हाइड्रोजन की वैलेंसी 2 है, सल्फर की हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, सल्फर की 2 है. क्रॉस मल्टीप्लाई, फॉर्मूला इज H2S. बर्न्स इन एयर. एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन. तो ये बर्न हो रही है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड. सो ये हमने वर्ड इक्वेशन से सिंबल इक्वेशन निकली. नाउ बैलेंस इट. बैलेंसिंग करने टाइम हम आप देख सकते हो यहाँ पे इस साइड पे कितने ऑक्सीजन है? 3. इस साइड पे कितने हैं? 2. और 3 और 2 को इक्वेट करने का मैंने मेथड आपको बताया था. क्या मेथड था? 2 को 3 से, 3 को 2 से. अब यहाँ पे देखो, जब हम यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करेंगे 2 वाले से, 6 हो जाएंगी. अब इधर भी हमें 6 चाहिए. अब अगर हम यहाँ पे 3 सल्फर डाइऑक्साइड के आगे 3 लगा देंगे तो ये वाला ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? हमें टोटल 6 चाहिए. तो 2 हमने अगर यहाँ लगाया तो ये कितने हो गए? 4 ऑक्सीजन. और इधर कितने हैं? 2. 4 + 2 इज 6. तो हमारे ऑक्सीजन एटम्स जो हैं इस तरह से बैलेंस हो गए. नाउ नेक्स्ट, हाइड्रोजन चेक करेंगे. हाइड्रोजन जो है इधर कितने थे पहले? H2S, 2 हाइड्रोजन्स. इधर भी कितने हैं? 2 हाइड्रोजन्स. इक्वल थे. बट जब हमने 2 लगाया आगे इन दोनों के आगे तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 2 ज़ा 4. सो इधर भी हमें कितने 2 लगाने पड़ेंगे? 1. सल्फर भी इससे 2 हो गए. इधर भी कितने थे? 2. सो दिस इक्वेशन इज बैलेंस. नाउ आप वैसे स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने आपको पहले कराया था वैसे भी कर सकते हो, बट मार्क्स आपको सिर्फ इस आंसर के मिलेंगे, सिर्फ इस आंसर के. स्टेप्स में आप जितना मर्जी लेंदी कर लो, बैलेंसिंग जो है किसी इक्वेशन की 1 और 2 मार्क में आएगी. तो आप बेटर है सीधा ही उसका आंसर जो है इजीली कर लो. वो काम आप रफ में भी कर सकते हो, या इट्स योर चॉइस. अगर आपको करना है तो आप स्टेप वाइज भी इसको सॉल्व कर सकते हो, बट इट इज़ ईजी. हिट एंड ट्रायल मेथड. नाउ थर्ड पार्ट, बेरियम क्लोराइड react with aluminium sulfate. Barium chloride, that is BaCl2, aluminium sulfate Al2SO4 thrice. बिकॉज एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3 और सल्फेट की कितनी है? 2. तो एल्यूमिनियम के पैर में क्या आएगा? 2 आएगा. सल्फेट के साथ क्या आएगा? 3. टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट. See in this equation, बेरियम क्लोराइड BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट मैंने अभी बताया SO4 की ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा? 3, बिकॉज एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या है? 3 है. फॉर्म्स एल्यूमिनियम क्लोराइड, दैट इज AlCl3 एंड बेरियम सल्फेट. नाउ अब सबसे ज़्यादा क्या है? 3 नंबर. 3 नंबर सल्फेट का है. सल्फेट इधर 3 है, इधर कितना है? 1 था. हमने इसके आगे 3 लगा दिया. नेक्स्ट, अब क्या करें? ये 3 लगा दिया हमने. उसके बाद क्लोरीन. इधर क्लोरीन कितने थे लेफ्ट हैंड साइड पे? 2. इधर कितने थे? 3. 3 और 2 को इक्वेट करने का वही मेथड. 2 के आगे हमने लगा दिया 3, 3 के आगे हमने लगा दिया 2. नाउ अब ये 2 लगाने से एल्यूमिनियम भी 2 हो गए. दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड. नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज पोटाशियम मेटल रिएक्ट विद. पोटाशियम मेटल को हम किससे रिएक्ट कर रहे हैं? वाटर से, H2O, टू गिव पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द सिंबल इक्वेशन. K plus H2O. K is potassium and H2O is water. Forms potassium hydroxide and hydrogen. Now what is the maximum number? 2 हाइड्रोजन का. सो हाइड्रोजन इधर कितने हैं? 2 ये और 1 ये, टोटल 3. इधर कितने थे? 2 ओनली. अब 3 और 2 को करना है. क्या करें? हम क्या कर सकते हैं? ये तो 2 ही थे. हम अगर यहाँ 2 लगाएंगे तो कितने मैक्सिमम हो जाएंगे? 4.
अब अगर इसके आगे 2 लगा देते हैं तो ये पहले ही 4 बन गया, ये H कहाँ जाएगा, तो हमने 2 इसको रहने दिया और 2 यहाँ पे लगा दिया, 2 + 2 दैट इज़ 4। ये 2 लगाने से क्या हुआ, पोटाशियम भी 2 हो गए, तो इधर भी हमें 2 लगाना पड़ा। सो दिस इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड नाउ। ये बैलेंसिंग की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप करोगे उतना ही आपका हाथ जो है ज़्यादा खुलेगा और पेपर में उतनी ही आपकी स्पीड जो है वो ज़्यादा बनेगी। ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी आएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज़ बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पे सीधी इक्वेशन दी हुई है, उसको बैलेंस करना है। इन दिस इक्वेशन यू कैन सी NO3 कितने हैं लेफ्ट हैंड साइड पे 1, इधर कितने हैं 2, OH इधर कितने हैं 2, काउंटिंग करेंगे जब, अब देखो NO3 इधर 2 है तो इधर हमें 2 लगाना पड़ेगा ताकि वो इक्वेट हो जाए। अब ये 2 लगाने से क्या हुआ, हमारा हाइड्रोजन भी हो गए 2, सो लेफ्ट हैंड साइड में टोटल हाइड्रोजन हो गए 4। अब इधर 2 थे, हमें इसके आगे भी 2 लगाना ताकि 2 2 ज़ा 4 हो जाए। ना अब कैल्शियम, कैल्शियम जो है देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था हमारे पास। अब ये 2 वाटर से हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी बढ़ गए, तो मीन्स हमें यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पे भी, क्योंकि एक कैल्शियम के आगे 2 लग गया तो दूसरे कैल्शियम के आगे भी 2 लगाना पड़ेगा। B part is NaOH plus H2SO4 forms Na2SO4 plus H2। अब देखो यहाँ पे सल्फेट सल्फेट दोनों साइड इक्वल है, Na इधर 2 हैं, इधर कितने हैं 1, सो मीन्स हमें Na को भी बैलेंस करना है। सो यहाँ पे 2 NaOH, सॉरी यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, 2 करना है, 2 NaOH plus 3 H2SO4 forms Na2SO4 plus 6 H2O। 6 H2O क्यों, क्योंकि 6 2s are 12 हाइड्रोजन आएंगे यहाँ पे। वन थिंग मोर, ये यहाँ पे 2 नहीं आएगा, क्या आएगा 6 ही आएगा, बिकॉज Na के आगे हमने यहाँ पे 3 लगाना है, 3 2s are 6 हो गए Na, यहाँ पे भी 6। अब आपकी इक्वेशन जो है बैलेंस हो जाएगी। नाउ थर्ड इक्वेशन इज NaCl plus AgNO3 forms AgCl plus NaNO3। दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, सारे नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो इक्वल हैं, सो हमें इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। नाउ नेक्स्ट, बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 फॉर्म्स बेरियम सल्फेट प्लस HCl। अब यहाँ पे बस एक चीज़ का फ़र्क है, क्या, हाइड्रोजन्स, इधर 2 थे इधर 1 था, तो हमने इसके आगे 2 लगाया, इससे सारी इक्वेशन जो थी आपकी बैलेंस हो। So these were the questions based on balancing. Now, question number 7th is write the balanced chemical equation for the following reactions. Calcium hydroxide plus carbon dioxide, CaOH twice। इसके लिए आपको सबकी वैलेंसीज याद होनी चाहिए। फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर, ये सिंबल्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट फॉर्म्स जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। नाउ दिस इक्वेशन, इधर NO3 1 था, इधर कितने थे 2 थे, तो ये बैलेंस नहीं है, जबकि ऊपर जो थी इक्वेशन हमारी बैलेंस हो चुकी थी। सो ये बैलेंस करनी पड़ेगी हमें, जब हम इसके आगे 2 लगा देंगे तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। थर्ड, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड फॉर्म्स एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। सो पहले फॉर्मूला लिखा हमने, फिर देखा इधर 2 क्लोरीन है, इधर 3 है, फिर 2 को 3 से, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लास्ट इज बेरियम क्लोराइड एंड पोटाशियम सल्फेट फॉर्म बेरियम सल्फेट एंड पोटाशियम
chloride. Now here 2 potassium are there and here only 1, so that is why we have put 2. So this equation is also balanced. So these were the questions 1 to 7 that are present in your back exercise. Next we will do in the next lecture. Up to then, revise all these balancing reactions, practice, and do tell me any problem, any query related to the question answers. Thank you so much. Bye bye.